Hi guys, we are back with the last chapter of Sales of Goods Act. इसका नाम है Rights of Buyer and Unpaid Seller. Guys, इस chapter के अंदर there will be a roller coaster ride and I'm sure you will have some doubts too. But I can just tell you that much, okay, whatever doubts you have it, kindly note it down so that when we are live, we can definitely help you solve it. Please focus to your best level further. Now, in this topic, you have rights of buyer and the rights of unpaid seller. So let us focus first on the rights of buyer. Okay? So I'll be splitting up the videos in parts. The first video will be talking about rights of buyer, and there will be a continuity video which will be talking about rights of unpaid seller. And even in unpaid seller, you'll have two breakups to that. So finally, you will have total three videos for this chapter, possibly of half an hour, 25 or 30 minutes each. Let's see how it goes. So rights of buyer. Now, these are general rights of buyer, which are basics of every nature of contract. मतलब common rights available with every buyer. Sorry, not relevant for buy hatting, relevant for understanding. Right to have delivery as per the contract. Yes, sir, he should have a delivery as per contract. Right to reject the goods if they are delivered in wrong quantities. He should have an option to reject the goods. He may accept it, he may reject. Matlab he should have a right to reject if he gets the goods in wrong quantity. You have done the delivery chapter, you know very well. Right to refuse delivery of goods by installment. Sometimes what happens, you have ordered some goods and he's delivering in installments and you don't want the same in install, you wanted everything together. So you should have a right to reject it, refuse delivery in case the goods have been available in installments. Notice, right to notice of shipment in case the goods are sent by sea so that he may get the goods insured. Now what happens is sometimes when the goods are coming through sea route, the seller informs the buyer regarding the details of transportation so that in case where buyer wants to insure the goods, buyer will have a right and information available with him, okay, at what time and how should I insure the goods. But if seller does not inform the buyer regarding the delivery, then he may miss the chance to ensure insurance of goods. So what is the duty of the seller here? There's a duty of seller and the right of buyer. That seller will be obliged to inform the buyer, okay, if you want to insure it, kindly insure the good, this is the route through which I am going to send it, and this becomes the right of the buyer. अगर ये inform नहीं किया और अगर goods damage हो गए, it will be at the seller's risk. अगर ये inform करने के बाद हुआ, it will be at buyer's risk. That is the conclusion, which is not here, but I'm just covering off what will be the final consequence of that right. Right to examine goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. General description हो, merchantability, तो आपको क्या मिलना चाहिए, sample हो. You should get a right to inspect the goods. तो यहाँ पे examine करके आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो goods आप खरीद रहे हो वो ऐसे ही है जो आप लेना चाहते थे. Let's recap these rights again. What are we learning? We are learning rights of buyer. ठीक है. Now this is something which is not that complex as of now. So right to take delivery of goods, right to reject the goods if they are not in wrong quantities. मैं ये नहीं कह रहा हूँ reject करेगा ही. He has a right, he has an option to reject. Right to refuse goods by installment. Again, I don't say that he can't take it. He can take if he wants to take in installment, but he has a right कि he may cancel it कि नहीं मुझे installment में नहीं चाहिए. Right to notice shipment in case the goods are sent by sea. सी रूट्स के अंदर जनरल इंश्योरेंस होता ही है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो ही शुड गेट अ नोटिस फ्रॉम द सेलर कि भाई आई एम सेंडिंग द गुड्स, you can do the insurance if you want to, and try to examine the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. Now comes the part 2 of it. Again, the rights of buyer against the seller in case of breach of contract. What is breach of contract? I don't have to say you a lot because you have learned in contract act. यहाँ पे if I just say breach refers to not performing the contract as per the contractual terms. ठीक है? Now let's say what the rights buyer has regarding it. Now, in case where seller wrongfully refuses to deliver the goods, we say it as suit for non-delivery. अगर seller goods को deliver करने को ही मना कर देता है, if he refuses to deliver the goods, the buyer may sue the seller for damages for non-delivery. ये रेमेडी तो मिलने ही वाली है
ownership is transferred to it or not. It means that delivery is one of the important condition. Sorry, delivery is one of the important criteria which talks about what? Okay, unless I get the delivery to the goods, I won't be able to enjoy the benefits out of it. You have seen the same in your quiet possession part also. Warranty as to quiet possession. यही है यहाँ पे कि if a buyer does not get delivery of on time, if the seller wrongfully refuses to deliver the product to the buyer, in that situation, the extent of loss caused to the buyer because of non-delivery, it will be a right of the buyer to sue the seller for the same. मतलब damages के लिए sue कर सकते हो. That is called damages for non-delivery. इसके हम आगे जाए. When we move forward, you have a right, second right of buyer in case of breach, that is specific performance. Now what happens, guys? In some cases, the damages will not be adequate remedy. पैसों से काम नहीं होगा सर. कब? ये भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में सीखा है. इन केस ऑफ एंटीक्स और रेयर आइटम्स, अगर गुड्स एंटीक है, यूनिक है और रेयर ऑफ इट्स काइंड है, तो देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर बाय यू मे नॉट बी एबल टू क्लेम डैमेजेस. यू वांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. इन दैट केस जब भी सेलर बोले मुझे नहीं देना है अभी वो गाड़ी या फिर वो आपका पुराना टेलीफोन, ये एंटीक है, तो बोला नहीं भाई देना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड करूंगा. क्योंकि एंटिक्स में और रेयर आइटम्स में हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं. I hope this is clear to every one of you guys. In case where the seller breaches the contract, the buyer shall have a right to claim damages for non-delivery, which we have seen earlier in point number 1. Delivery refuse कर दिया, damages मांगो. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम क्या मांगेंगे? डैमेजेस नहीं मांगेंगे, हम वो गुड्स मांगेंगे. क्योंकि यहाँ पे गुड्स कब मांग सकते हैं? जब वो गुड्स क्या है? एंटिक है. अगर वो गुड्स एंटिक नहीं होते तो हम क्या मांगते हैं? सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी मांग लेते. आपको कनेक्ट समझ में आ रहा है? आता है थर्ड पार्ट, ब्रीच ऑफ वारंटी. ब्रीच ऑफ वारंटी का पार्ट यहाँ पे एप्लीकेबल जो हो रहा है, इट इज मोर डिटेल इन नेचर. आई विल मेक यू रीड इट अ बिट एंड देन आई विल टेल यू थ्रू एन एग्जांपल. व्हेन द ब्रीच ऑफ वारंटी by the seller, that is the defects in the goods delivered, or where the buyer elects to treat the breach of condition on the part of seller as a breach of warranty. यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि या तो ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है या तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है और हम उसको क्या काउंटर कर रहे हैं? एज ब्रीच ऑफ वारंटी. फाइनली हम ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी की है तो हम डैमेजेस क्लेम कर सकते, वो हमने सीखा है. लेट्स चेक इट आउट. हाउ मच विल बी द डैमेजेस? तो बोलता है ही मे क्लेम अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस. सर जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बॉटल है, इट्स अ बॉटल वेयर योर वाटर रिमेन्स कोल्ड और हॉट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ना इफ सपोज इस बॉटल जो आपने खरीदा उसके बाद आपने देखा कि इस बॉटल में डेंट है छोटा सा, या कि बॉटल का जो बॉक्स था वो फटा हुआ था, आपको स्टोर से खरीद रहे थे, तो आपने कहा यार इसका फ्रेश थोड़ी पीस है, फ्रेश पीस दो. मैडम फ्रेश पीस नहीं है हमारे पास, स्टॉक आउट है. अरे तो 500 रुपये का कुछ कम कर दो ना, ऐसा अच्छा पीस थोड़ी है, थोड़ा स्क्रैचेस भी है. तो आपको लगा सस्ते में मिल रहा है ना, क्या फर्क है, क्वालिटी तो सेम ही है. तो 500 का दिया था तो आपने 50 रुपया काट दिया. फाइनली क्या बोला? आई विल पे यू 450 ओनली. तो व्हाट यू हैव डन, द प्राइस इज 500 एंड दिस इज द वारंटी रिडक्शन फ्रॉम प्राइस बिकॉज ऑफ देयर इज सम काइंड ऑफ अ ब्रीच बाय द सेलर. ब्रीच क्या था पता है? प्रोडक्ट वाज नॉट एज रिक्वायर्ड अर्लियर. नंबर 2, अगर ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि वो उस बॉटल के अंदर पानी गर्म भी नहीं रहता है और ठंडा भी नहीं रहता है, उल्टे का पानी का बॉटल लीक भी होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर हम पूरा का पूरा पैसा पे करने से अवॉइड कर सकते हैं. ही मे रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑल टुगेदर इफ द प्राइस इज इक्विवेलेंट, इफ द लॉस इज इक्वल टू प्राइस. मैंने ये बोला है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन भी आप क्या मान रहे हो? ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहे हो. तो फाइनली आपने क्या कर दिया पता है? आपने प्राइस पे करने से मना कर दिया. क्यों? क्योंकि लॉस इज इक्वल टू प्राइस. यहाँ पे जो लॉस है वो इक्वल टू प्राइस है, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है इस चीज का. तो लॉस इज इक्वल टू प्राइस, तो फाइनली यू हैव टू पे. इट्स अ यूजलेस स्टफ टू यू, तो यू डोंट हैव टू पे प्राइस. इसमें आप ये भी कह सकते थे कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया.
एज टू मर्केंट एबिलिटी, वहां पे भी आप क्लेम कर सकते हो, वो भी आप क्या कर लेते, कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। तो बात तो एक ही होती, अगर लॉस इक्विवेलेंट है तो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानो या वारंटी, बात एक ही होगी। लेकिन यहाँ पे ये कहता है इफ द लॉस एक्सीड्स प्राइस ही मे नॉट ओनली रिफ्यूज टू पे द प्राइस बट ऑल्सो क्लेम द एक्सेस। अगर ये बॉटल गर्म पानी रखा ना और बॉटल गर्म पानी रखने से फटी, बस्ट हुई, और जैसे ही बॉटल बस्ट हुई ना किसी का हाथ जल गया, और किसी का हाथ जला और उसे समझो 1 महीना घर पे रहना पड़ा, उसको जैसा सर्जरी डन टू दैट एंड कॉस्टेड अराउंड 25,000 रुपीज। ना 500 रुपए की बॉटल के पीछे 25,000 का नुकसान, 1 महीना घर पे बैठना पड़ा। This is exceeding the price. We can say we can claim what? Not only the price if you have paid it, definitely more than that. That is the damage cost to you. So what I'll tell you again, the same concept back. In case where there's a breach of warranty by the seller, that is there's a defect in the goods, or where the buyer considers any breach of condition as breach of वारंटी, या तो ब्रीच ऑफ वारंटी है या फिर कंडीशन को वारंटी मान रहे, बायर के पास रेमेडीज है उस सेलर के अगेंस्ट। मतलब ये गुड्स तो आ गया है, ऐसा नहीं है गुड्स आया नहीं। पहले वाले एग्जांपल में देखा आपने क्या था, परफॉर्मेंस में गुड्स आया ही नहीं था। उसके पहले में नॉन डिलीवरी, मतलब डिलीवरी दिया ही नहीं था। ये डिलीवरी हुआ पर कुछ गड़बड़ है, तो छोटी गड़बड़ है तो पैसे काट दो, बड़ी गड़बड़ है तो पैसा मत दो, और गड़बड़ इतनी बड़ी है कि नुकसान कर दिया तो पैसे तो छोड़ो, अगर दे दिया तो ले लेना, लेकिन उससे ज्यादा भी आप क्लेम कर सकते हो। इट्स समथिंग वेयर इट एक्सीड्स दैट, you can say that it is nothing but a kind of a condition which you have counted as warranty. In short, you are claiming damages. कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कैंसिल करोगे तो क्या होगा, बॉटल जो है वो तो टूट गई, क्या करते कैंसिल करके, डैमेजेस तो क्लेम करना आपका हक है, वो रहेगा। मूविंग फर्दर गाइस, आई एम सॉरी, let me just reassure this stuff. 3 elements is very important to you. Claim reduction of price, make your price equivalent, make your price equivalent to that, that is make your price equivalent to your loss, so you don't have to pay anything out of it. And number 3, if your loss exceeds the price then claim higher amount to that. Point number 4 says about sue for anticipatory breach of contract. When the seller repudiates the contract before the due date of delivery, the buyer may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages for the breach. सर ये भी तो सीखा हुआ है, डेफिनेटली यस। जब सेलर पहले से बोल देता है कि सर मैंने आपको माल बोला था बेचने को, मैं नहीं बेच पाऊंगा, गलती हो गई, सॉरी। अब यहाँ पे इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। बाहर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अभी का अभी कैंसिल करके डैमेजेस क्लेम कर ले, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखेगा, और कब तक, ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे वो सू कर सकता है वो एंटीसिपेटरी ब्रीच इनिशियली बाय कैंसिलिंग इट इमीडिएटली, तो वहां पे वो डैमेजेस मांग सकता है। बट वो अगर वो ऐसा करता ही नहीं है देन इज गोइंग फॉर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे वो परफॉर्म करेगा या तो नहीं करेगा। अगर वहां पे वो परफॉर्म करेगा तो परफॉर्म हो जाएगा, और नहीं करेगा तो वहां पे वो एक्चुअल ब्रीच माना जाएगा। उस दिन में जो ब्रीच होगा उस हिसाब से डैमेजेस कंप्यूट किए जाएंगे। अब आता है सू फॉर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ प्राइस। अब ये कहता है कि अगर बायर हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस एंड सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स, अरे ये तो एडवांस पेमेंट हो गया, यस सर, प्राइस पे कर दिया है और फिर भी गुड्स नहीं मिला, तो सर वो दो चीजें मांगेगा। अगर आपको इमेज समझ में आता हो तो एक आइकन है इंटरेस्ट का, एक आइकन है प्राइस का। तो एलिमेंट नंबर 1 कहता है कि पहले तो आप रिफंड ऑफ प्राइस क्लेम कर पाओगे क्योंकि गुड्स मिला नहीं हो, एडवांस दे दिया था, और जितना डिले हुआ एडवांस वापस मिलने में उसके लिए आप क्या क्लेम कर सकते हो, उसके लिए आप क्या क्लेम कर सकते हो, इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। और ये इंटरेस्ट के साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है, वो है स्पेशल डैमेजेस, वो है स्पेशल डैमेजेस। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में सीखा है कि अगर आपने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हो द प्रोबेबल लॉस विच विल कॉस्ट टू यू, द प्रोबेबल लॉस विच विल बी कॉस्ट टू यू, अगर पार्टी परफॉर्म नहीं करता है, अगर आपने पहले से वो कन्वे कर दिया था तो आप क्या क्लेम कर सकते हो, स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आई थिंक आई हैव डन इट, वी हैव डन इट लॉन्ग, तो आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो, आप प्राइस क्लेम कर सकते हो, ब्याज क्लेम कर सकते हो, और अगर आपने कम्युनिकेट किया था
तो स्पेशल डैमेजेस भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब इस बेसिस पे लेट मी रिकैप द एंटायर स्टफ वन मोर टाइम दिस टाइम, ठीक है, और आपका पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। वापस मेरे पास साथ में रहना। ये है पहले जनरल राइट्स ऑफ बायर, जो किसके बारे में बात करते हैं? राइट टू हैव डिलीवरी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ दे आर डिलीवर्ड इन रॉन्ग क्वांटिटीज, right to refuse it for payment by for delivery of goods by installments, right to get notice of shipment so that the goods can be insured by the buyer, and right to examine the goods. That's fine. ये जनरल राइट्स है आपके। अब स्पेसिफिक राइट्स में ब्रीच होने पे क्या क्या मांग सकते हो? तो ये बोला सर अगर उसने सेलर ने डिलीवरी नहीं किया तो सू फॉर नॉन डिलीवरी सर, सू फॉर नॉन डिलीवरी, और आपको जो नुकसान हुआ उसके माल ना आने पे वो आप डैमेजेस मांगो। बायर आप ओनर हुए हो, अग्रीमेंट टू सेल हो, आप डिलीवरी नहीं मिला, आप डैमेजेस तो क्लेम दोनों में कर ही सकते हो। फिर आपको लगा कि सर डैमेजेस नहीं चाहिए, वो गुड्स ही चाहिए, वो गाड़ी मेरे दादा के दादा के दादा के दादी की थी वो चाहिए सर, मुझे वो मेरे 200 साल पुराना वो फोन चाहिए। अब वैसे केसेस में क्या डिमांड कर सकते हो? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर अगर डैमेजेस हुआ, नुकसान हुआ, कितना? छोटा सा, रिड्यूस फ्रॉम प्राइस, थोड़ा ज्यादा, इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ प्राइस, तो क्या करो? मत दो, और ज्यादा है तो एक्सीडिंग क्लेम करो। एंटीसिपेटरी ब्रीच, तो ये कहता है एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के ड्यू डेट के पहले आपने बोल दिया, सेलर ने बोल दिया मैं कंफर्म नहीं करूंगा, तुझे जो करना है कर ले। तब बायर के पास दो राइट्स है, या तो उस दिन कैंसिल करके सू करके डैमेजेस क्लेम कर ले, या फिर कंटिन्यू करे कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट के दिन देखे क्या करना है, परफॉर्म करे ना करे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ड्यू डेट पे के पहले भी एंटीसिपेटरी ब्रीच में वो क्या कर सकता है? सू कर सकता है। सू फॉर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ प्राइस कब अप्लाई होता है? जब आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। किसने? बायर ने सेलर को। तो फाइनली जब बायर ने ऑलरेडी सेलर को पे कर दिया है और फिर भी वो डिलीवरी ना दे, तो वो अपना पैसा मांगेगा पहले, उसके ऊपर इंटरेस्ट मांग सकता है, और कुछ कम्युनिकेशन किया हो तो स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। एक बात आपको मैं नोटिस करवाता हूँ, सूट फॉर नॉन डिलीवरी एक्चुअली मीन्स एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअली मीन्स एक्चुअल भी डिलीवरी दिन पे आपने डिलीवर नहीं किया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ऑल्सो राइट देयर, जहाँ पे आपको वही चीज चाहिए जो आपने मांगी थी, डैमेजेस से काम नहीं होगा। ब्रीच ऑफ वारंटी में आप डैमेजेस मांग रहे हो। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंपेयर्ड विद पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे वो एक्चुअल ब्रीच था, यहाँ पे वो एंटीसिपेटरी ब्रीच पे आता है। एंड नंबर 5 में जब आपने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर दिया। आई होप एंड आई एम श्योर आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट एलिमेंट दैट इज राइट्स ऑफ बायर फिनिश कर दिया है। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विल बी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर।